Good morning, student. Today our topic is demand analysis. Let's start. When we hear the word demand, just one picture came in our mind, that is desire. Most of the students think that demand means just a desire, but desire means willingness to have something. It is not fully desire, it is not fully demand. Desire just a willingness to have something. The definition of demand is not only limited just to a word desire, but desire is the one element of demand. Then what is meant by demand? For demand is the combination of three elements, that is desire plus ability to pay plus willingness to pay. Desire means combination of three elements, that is demand means combination of three elements, desire plus willingness to pay plus ability to pay. जब हम ये वर्ड डिमांड सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये एक तरह का डिज़ायर है. किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा ये डिज़ायर हो सकती है, लेकिन डिज़ायर ये डिमांड से डिफरेंट है. डिज़ायर का मतलब डिमांड नहीं होगा, और डिमांड की डेफिनेशन सिर्फ डिज़ायर तक लिमिटेड नहीं है. डिमांड की डेफिनेशन वो हम ब्रॉड सेंस में लेंगे. डिमांड जो है वो तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आता है डिज़ायर, उसके बाद परचेसिंग पावर, एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे का मतलब होता है परचेसिंग पावर, एंड नेक्स्ट वन इज विलिंगनेस टू पे. एबिलिटी टू पे मीन्स परचेसिंग पावर, एंड नेक्स्ट willingness to pay. It means you must ready to pay for it. And these three elements, that is desire and purchasing power, these are the elements of demand. It means all those desire may become demand which are backed by purchasing power. All those desire may become demand which are backed by purchasing power. Purchasing power means ability to pay and willingness to pay. They may become demand. It means for demand it is a combination of these three elements, desire plus ability to pay and willingness to pay. डिमांड किसे कहेंगे? किसी चीज़ की इच्छा, ये अकेली इच्छा डिमांड नहीं हो सकती. वो इच्छा को आपको डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास परचेसिंग पावर होना चाहिए. परचेसिंग पावर का मतलब यू मस्ट हैव sufficient money to purchase those commodities, and you must ready to pay for that commodity. These are the elements of demand. These three are the most important elements for the demand. For first and most important element of demand is desire. Why people generally demand the goods and services? Because they have the desire for that product. That's why desire is the most important element of demand. For demand there must be a desire for the product, and after desiring the product, people must be able to pay to purchase for that product, to purchase the product, and they must ready to pay for that product. After combination of these three elements, it may convert into demand. डिमांड के लिए सबसे पहले डिज़ायर होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट का दिल में इच्छा. लेकिन सिर्फ इच्छा से वो जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. वही सारी इच्छाएं डिमांड में कन्वर्ट होंगी जो आगे परचेसिंग पावर से बैक्ड होंगी. परचेसिंग पावर की मदद से ही हम सारी इच्छाओं को डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कार खरीदने की इच्छा है,
लेकिन हमारे पास अगर पैसा ही नहीं है कार खरीदने का तो हम कार परचेस नहीं कर सकते, हम कार की डिमांड नहीं कर सकते। तो ये डिज़ायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सेकंड एग्जांपल, हमारे पास हमारा डिज़ायर भी है कार खरीदना और हमारे पास पैसे भी है, बट वी आर नॉट रेडी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। अब डिज़ायर भी है और एबिलिटी टू पे भी है, हमारे पास परचेसिंग पावर है, पैसा है, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है वो पैसा उस प्रोडक्ट में खर्च करने की, फिर भी ये डिमांड नहीं बन सकती। तो डिमांड के लिए हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है कि पहले तो इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास उतना पैसा हो जिससे हम वो प्रोडक्ट खरीदें, और पैसा होने के बाद आप वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो, तो तब जाके ये डिमांड में कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ से अब हम ये समझ सकते हैं कि दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिमांड। हियर फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन easily understand the demand and what are the elements required for the demand. Here you can see that some products are there here, and this family is just watching that product. It means they may be the desire for that product. So for demand, desire is the first element, and next second, money means ability to pay. We must have sufficient money to purchase that product. And third one, willingness to pay. It means you must ready to pay for that. तो डिमांड के लिए थ्री एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चल के जो है वो डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट होंगी। सिर्फ डिज़ायर से डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती, डिज़ायर के साथ साथ परचेसिंग पावर भी होना चाहिए और आपकी इच्छा भी होना चाहिए वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है रास्ते से जाते हैं, और एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम रास्ते से जा रहे हैं और देखते हैं कि फ्रूट्स आप देखेंगे, एप्पल्स जो है आप देख रहे हैं, एप्पल्स खाने की आपकी इच्छा भी हो रही है और आपके जेब में पैसे भी अगर है, लेकिन आप जो है वो पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है, आप रेडी नहीं होते पैसे खर्च करने के लिए, तो इस तरह आप उस एप्पल की डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो डिमांड के लिए जो है वो डिज़ायर भी हो, एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो। तो ये तीन एलिमेंट्स मिलके जो है वो डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड तैयार होती है। Now let us see the meaning of demand. These are just elements of demand. Now we will see the definition of demand. What is meant by demand? Demand means, demand is that quantity of commodity which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of टाइम। डिमांड का मतलब होता है प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो पर्सन तैयार है, रेडी है परचेज करने के लिए डिफरेंट प्राइस पे या कोई पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो इसे हम डिमांड कहेंगे। डिमांड प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी होती है जो लोग या कोई पर्सन अलग अलग प्राइस पे या डिफरेंट प्राइस पे उसे खरीदने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड डिमांड। तो हम उसको डिमांड कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड हमने देखा है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड डिमांड। नाउ व्हाट विल बी द इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल, हियर यू कैन सी दिस वर्ड इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, डिमांड ऑफ सिंगल पर्सन। देन व्हाट विल बी द इंडिविजुअल डिमांड? Individual demand means quantity of commodity which are purchased or ready to purchase by single person at different prices during a particular period of time. It is called individual demand. अब individual demand किसे कहेंगे?
प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो अलग अलग प्राइस पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो खरीदता है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर, तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दैट there are multiple products but here is a single buyer, single person. अब यहाँ जो है देख सकते हैं कि अलग अलग प्राइस पे जो है अलग अलग प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीदी गई है, लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक सिंगल पर्सन है मार्केट में, एक अकेला सिंगल पर्सन है जो प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी जो है अलग अलग प्राइस पे खरीद रहा है, लेकिन खरीदने वाला सिर्फ सिंगल पर्सन है, एक पर्सन. तो इस डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर परचेज बाय और रेडी टू परचेज बाय अ सिंगल पर्सन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे. नाउ नेक्स्ट, market demand. What will be now market demand? In individual demand, product is purchased by single person, and here market demand means demand of all individual, summation of all individual. Market demand means quantity of commodity which are purchased by all person, which are purchased by all person at different prices during a specific period of time in the market, then it will call market demand. मार्केट डिमांड किसे कहेंगे? प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो सारे पर्सन, सारे के सारे पर्सन जो है इंडिविजुअल, सारे के सारे इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस पे मार्केट में खरीद रहे हैं, उन सारे पर्सन की जो है डिमांड, इसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे. फॉर एग्जांपल, गुड्स आर परचेज बाय अजय at different prices in the market, then it will call only individual demand. अगर अलग अलग प्राइस पे अजय गुड्स खरीद रहा है तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी. लेकिन गुड्स आर परचेज बाय अजय, विजय, रमेश, सुरेश, अली, इन अलग अलग पर्सन के ज़रिए जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं उन सब की टोटल करके जो डिमांड आएंगी इसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे. मीन्स quantity of commodity which are purchased by all person at different prices during a specific period of time, then it will call market demand. Now next, individual demand schedule. Individual demand schedule. Schedule means it is a tabular representation. Individual demand आप देखेंगे और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसमें सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है और वो है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. ये इंडिविजुअल डिमांड को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर परचेज बाय सिंगल पर्सन एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट, देन इट विल कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इट विल कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल की जो डिमांड है, गुड्स कोई अकेला सिंगल पर्सन जो अलग अलग प्राइस पे मार्केट में गुड्स खरीद रहा है उसको टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऑफ मैंगो 10, 20, 30, 40, 50, 60. प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी अगर हम यहाँ देखें कि मैंगो का प्राइस अगर 10 रुपीज़ पर केजी 20, 30 है तो उसकी डिमांड यहाँ पे दिखाई गई है 100 kg, 90, 80. जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है डिमांड, उसके ज़रिए डिमांड जो है वो कम होते जा रही. तो यहाँ पे जो अलग अलग प्राइस पे गुड्स परचेज की जा रही है या उसकी अलग अलग डिमांड की जा रही है, ये किसी एक सिंगल पर्सन के ज़रिए है. और इस सिंगल पर्सन के ज़रिए जो अलग अलग डिमांड मार्केट में की जा रही है इसको टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है. Now here I think you are clear here the difference between individual demand and individual demand schedule. What is mean by individual demand and individual demand schedule? Just a single line, that is tabular representation.
Now next, market demand schedule. Now what will be the market demand schedule? Now market demand schedule means it will also a tabular representation of the quantity of commodity which are purchased by all person at different prices during a specific period of time. Then it will call market demand schedule. Now here you can see clearly from this table we can understand the market demand schedule with the help of this table. Here price of mangoes is given same as previous individual demand schedule 10, 20, 30, 40, 50, 60. Now but here is the difference is that here there are more than one purchaser. Here you can see that quantity is demanded by consumer A, consumer B, consumer C. At price of rupees 10, consumer A demanded 100 kg quantity, consumer B 90 and consumer B C. Here after summation of these three, demand of consumer A plus B plus C, now total demand is 270. Same as at the price of 20, 90 plus 80 plus 70, 30. At the price of 30, 80, 70, 60. Here is the total column, summation of total quantity of commodity demanded by consumer A, B and C. Then these are the total demand that will called market demand, and tabular representation of this market demand is market demand schedule. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर जो है वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए जो डिमांड की गई है उन सब का सम्मेशन जो है इसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है. दैट विल कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ डिमांड, द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड and individual demand schedule, market demand and market demand schedule. In under the definition of demand we have seen for demand three elements are required: desire, ability to pay, willingness to pay. When we hear the word demand we just assume it is a desire, but desire is just something to have. Willingness to have something. Willingness to have something is the desire, and only those desire may become demand which are backed by purchasing power. Purchasing power means ability to pay and willingness to pay. Thus from this we can conclude that for the demand three elements are required, that is desire, ability to pay and willingness to pay. And later on we had seen the actual meaning and definition of demand. Demand means quantity of commodity. Demand means quantity of that commodities which are purchased by people at different prices during a specific period of time in the market. प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो लोग तैयार होते हैं खरीदने के लिए मार्केट पे अलग अलग प्राइस पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो इसे बोला जाता है डिमांड. उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड देखा कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज परचेज, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज परचेज बाय सिंगल पर्सन और रेडी टू परचेज बाय सिंगल पर्सन. फिर उसी को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है. मार्केट डिमांड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which are purchased by all person at different prices in the market, ये market demand हुआ. And market demand schedule means tabular representation of quantity of commodity which are purchased by all person at different prices during a specific period of time. तो सारे लोगों के ज़रिए जितनी डिमांड मार्केट में की गई है अलग अलग प्राइसेस पे, उन सारे पर्सन की डिमांड की टोटल सम्मेशन, इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है. So dear student, in first lecture we had seen these all topics. Now in next lecture we have seen the next topic which is related to our first chapter,
दैट इज़ डिमांड एनालिसिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए या आगे इस चैप्टर के और आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।